Hello everyone, in this video I am going to do chapter 9 linear equation in one variables value based questions. So before starting the question you should understand it is written if a scooterist drives at the rate of 24 km per hour from his home. This is the speed of the scooterist when he is driving from his home. Then with this speed, he reaches his workplace 5 minutes late. But if he drives at this rate, means 30 kilometer per hour, he reaches his workplace 4 minutes early. So find the distance of his workplace from his home, and is it advisable to drive at high speeds? Give reason. So for the better understanding of this question, you must know the formulae. Speed is equal to distance upon time, and time is equal to distance upon speed, and distance is equal to speed into time. These formulae must be understood by you. Now question number 1 of value based, which I am doing. First line I am reading again. Find the distance of his workplace from home. We need to assume this. Let distance of workplace, let distance of workplace from home, घर से लेकर उसके वर्क प्लेस का डिस्टेंस जो है वो कितना है x किलोमीटर, राइट। अब अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो अपने वर्क प्लेस के ऊपर 5 मिनट्स लेट पहुंच रहा है। तो आई एम राइटिंग स्कूटरिस्ट इफ स्कूटरिस्ट ड्राइव्स at the rate of if scooterist drives at the rate of 24 kilometer per hour, comma, the then the time taken by him. तो ऐसे केस में उसको कितना टाइम लगेगा, देन द टाइम टेकन बाय हिम. As I have told you, the formula of time is distance upon speed. So I am writing here it is distance upon speed. So distance is how much? X, and speed is how much? 24. X upon 24. But as he has told that he is reaching 5 minutes late, so how can we find correct time? Correct time will be x upon 24, and from this we will subtract 5 minutes. तो 5 मिनट्स को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करते हो तो कैसे होगा? 5/60, राइट. सो हियर यू विल राइट 5/60. सो this you can give equation number 1. Now in other case, if scooterist drives at the rate of what is the other speed? 30 kilometer per hour. If the scooterist drives at the rate of 30 kilometer per hour, then time taken by him, अब उसने बताया कि अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो अपने वर्क प्लेस में 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो वही आप करोगे x, अब यहाँ पर अब उसका कितना है, ये डिस्टेंस x है और स्पीड पहले 24 थी, अब कितनी है, अब 30 है। अब क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाता है तो वो 4 मिनट्स जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो 4 मिनट्स के आवर्स कितने बने? 4/60 बने। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप क्या करोगे, 1 और 2 को इक्वेट करोगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो x/24 माइनस
5/60 इज इक्वल टू x/30 प्लस 4/60। अब आप इसे सॉल्व करो, x की टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, x/24 माइनस x/30 इज इक्वल टू 4/60 माइनस 5/60। जब राइट में जाएगा तो प्लस का बनेगा 5/60। अब 24 और 30 का आप एलसीएम ले लो, रफ में ले सकते हो, 120 आएगा। 120 को 24 से डिवाइड करते हो तो 5 आता है, 5 इंटू एक्स 5x। 120 डिवाइडेड बाई 30 इज 4, 4 इंटू एक्स इज 4x। यहां पर एलसीएम 60 आया तो न्यूमिरेटर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। 5x माइनस 4x इज x, x/120 इज इक्वल टू 9/60। अब आप x फाइंड आउट करो। ये 120 जो है वो 9/60 को मल्टीप्लाई करेगा। 60 1s are 60, 60 2s are 120 एंड 9 2s are 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 18। और यही उसने पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज वर्क प्लेस फ्रॉम हिज होम। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ वर्क प्लेस, डिस्टेंस ऑफ वर्क प्लेस फ्रॉम होम, ये आ गया 18 किलोमीटर। अब इसका बी पार्ट क्या है? दिस वॉज ए पार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। बी पार्ट है इसका, इज इट एज एडवाइजेबल टू ड्राइव एट हाई स्पीड्स एंड गिव रीजन। तो यू विल राइट इट इज नॉट एडवाइजेबल, it is not advisable to drive at, it is not advisable to drive at high speeds because it may cause accidents, it may cause accidents and injury. So we should drive at moderate speeds. So this was the solution of question number 1 of value based. Hope you have understood the solution clearly. Now there is question number 2 also of value based questions. So we will do the solution of question number 2 also in this video only. So question number 2 of value based questions. Value based questions are sometimes tested in the exams because these questions inculcate the moral values. Now see, DAV school wants to give 15 prizes to the students. How many prizes? 15. And on what platforms? Discipline, politeness and punctuality. If the number of prizes for politeness is 5/6 of number of prizes of discipline, ना हमें पोलाइटनेस के प्राइजेस पता है, ना डिसिप्लिन के पता है और ना पंक्चुअलिटी के। इसी स्टेटमेंट में सब कुछ हिडन है कि नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ पोलाइटनेस इज 5/6 ऑफ नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ डिसिप्लिन एंड नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर पंक्चुअलिटी इज 4/5 ऑफ नंबर ऑफ पोलाइटनेस। तो ऐसे केस में यू फाइंड द नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ ईच वैल्यू and then further apart from our 3 values write one more value for which prize can be given to the students. इस क्वेश्चन में तीनों चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है, राइट? तो सबसे पहले हमें एज्यूम करने पड़ेंगे प्राइजेस ऑफ डिसिप्लिन। लेट नंबर ऑफ प्राइजेस, लेट नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के प्राइजेस आप कितने एज्यूम कर लो? x. नाउ यू विल राइट देयरफॉर, अब लेट नहीं करना, अब देयरफॉर लिखना है।
नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ पोलाइटनेस, नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ पोलाइटनेस। तो पोलाइटनेस के कितने प्राइजेज बोले? 5/6 ऑफ नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ डिसिप्लिन। सो 5/6 मल्टीप्लाइड x, तो ये बन जाएगा 5x/6। अब उसके बाद बोले नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ, दिस इज नाउ फर्दर पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी के पता कितने बोले हैं? उसने बोला है नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर पंक्चुअलिटीज 4/5 यानी 4/5 ऑफ प्राइजेस ऑफ पोलाइटनेस। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये पोलाइटनेस के प्राइजेस को मल्टीप्लाई कर दो। कोई कटिंग होती है तो कर दो, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 5 और 5 कट हो जाएगा, तो ये बन गए 2x/3। अब टोटल प्राइस कितने हैं? 15 है। टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज कितने हैं? 15। तो आप तीनों के प्राइजेज को ऐड कर दो, यानी x को x/1 कर दो, फिर पोलाइटनेस के हैं 5x/6 और पंक्चुअलिटी के हैं 2x/3 एंड इट इज इक्वल टू 15। अब आप 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, इट विल बी 6। 6 divided by 1 6, so 6x। 6 divided by 6 is 1, 1 into 5x is 5x। 6 divided by 3 is 2, 2 2s are 4x and it is equal to 15। 6 plus 5 11, 11 plus 4 is 15x divided by 6 is equal to 15। Now you can find x। 15 over 6 reciprocates to the other side, 6/15, 15 cancel, and the value of x is what? 6. He is asking the prices of each value. So therefore number of prices of डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का आपने x एज्यूम किया था, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो डिसिप्लिन के प्राइजेस हो गए 6। अब करते हैं फाइंड आउट पोलाइटनेस के, नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ पोलाइटनेस। पोलाइटनेस के कितने प्राइजेस है? 5/6 इंटू x यानी 6, तो 6 कैंसिल हो गए, कितने बन गए? 5 प्राइजेस। अब आप फाइंड करोगे पंक्चुअलिटी के, नंबर ऑफ प्राइजेज फॉर पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी के कितने प्राइजेस बन रहे हैं? 2x/3 यानी 2/3 मल्टीप्लाइड x की वैल्यू है 6। ये 2 2s are कितना बना? 4। तो ये देखो 6 + 5 11, 11 + 4 15 प्राइजेस बन गए। ये था सॉल्यूशन ए पार्ट का। अब बी पार्ट में क्या लिखा है कि इन वैल्यूज के अलावा आप कोई और वैल्यू बताओ जिसके लिए प्राइज दिया जा सकता है। तो डिसिप्लिन तो एक हो गया, पोलाइटनेस एक हो गया, पंक्चुअलिटी एक हो गया। आप कोई भी इसमें वैल्यू लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिसिप्लिन हो गया, पोलाइटनेस हो गया, पंक्चुअलिटी हो गया, और किस वैल्यू के लिए आप कर सकते हो। तो इसमें आप जैसे मान लो शेयरिंग एंड केयरिंग कर दो, कि जैसे किसी बच्चे में कोई आदत हो किसी के साथ चीज़ शेयर करने की, फिर उसकी कोई केयरिंग करने की, राइट। तो फिर और आप कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक वैल्यू है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हर काम को रिस्पॉन्सिबल वे से करना। इसके अलावा आपके मन में कोई भी और वैल्यू आती है जिसके लिए किसी बच्चे को प्राइज दिया जा सके, यू कैन राइट एनी वन ऑफ द वैल्यूज। होप the value based questions both explained in this video are clear to all of you. If understood all the questions, like the video, comment and share with your friends so that
they can understand the questions in the most easiest way. Thank you.